सो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में फर्स्ट पार्ट करते हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा. ओके, सो दिस इज अ पेन portrait of a traditional Goa village baker who still has an important place in the society. Okay, so this part is a pen portrait. Okay, ये क्या है, ये पेन पोर्ट्रेट है जिसमें एक तो होता है पोर्ट्रेट स्केच वाला जिसमें हम किसी भी चीज को पोर्ट्रे करते हैं, राइट. लेकिन ये क्या है, ये थ्रू द पेन है ना, हम राइटिंग में उसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं. तो इसमें देखो आ जाएगा तुम्हारा, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. Okay, so in this part, the narrator is remembering his old days, है ना, जो तुम्हारा जो है गुड ओल्ड डेज, उसके बारे में वो सोच रहा है. और वो इसके बारे में किससे सुनता था, एल्डर से सुनता था. क्या सुनता था, क्या थी वो बात, वो ये थी कि जो पोर्टुगीज थे और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. ठीक है, हालांकि मतलब उसके जो खाने वाले हैं वो तो मतलब खत्म हो गए, लेकिन बनाने वाले अभी भी वैसे ही हैं. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. Okay, तो जो बेकरी थी जिसमें वो ब्रेड बनता था वो अभी भी है. और इवन वो क्या कर रही है, अभी भी चल रही है एक तरह से हम देखें तो. लेकिन अभी भी मतलब वो उस स्पीड से नहीं चल रही, लेकिन बस चल रही है. ओके, द थर्ड एंड द jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning, he can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa. ठीक है, तो ये जो Yes. ट्रेडिशनल जो बेकर्स है, ठीक है, जो मतलब पुराने जमाने का टेक्निक यूज करते हैं, जो पोर्टुगीज लोग उसके ब्रेड को बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैडर कहते हैं इन गोवा. यहाँ तक क्लियर स्पेशली. Yes, sir. So during our childhood in Goa, the baker used to be a friend, companion, and guide. Okay, he used to come at least twice a day. Once when he set out in the morning on his selling round, then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling third of his bamboo woke up from sleep, and we ran to meet and greet him. Okay, अब जैसे कैसे बचपन में जो होता है, बचपन में एक कोई भी चीज, जैसे तुम्हारे बचपन में कोई चीज ऐसे आती थी जिसके लिए गेट पे खड़े होकर हम मतलब कहते थे कि अच्छा अब आएगा खरीद के फिर हम खाएंगे. एक वो आता था जो मतलब पिंक पिंक कलर सा होता था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, जिसके लिए बचपन में हम मतलब बहुत उसके लिए एक्साइटेड रहते थे कि कब आएगा और कब हम लोग खरीद के खाएंगे. तो ये पूरा का पूरा क्या था, एक तरह से अपना मतलब चाइल्डहुड इमेजिन कर रहा है, राइट. और जब वो वापस Yes. आता था, जब वो मतलब जो पैडर है वो जब वापस आता था राउंड पर से, तो उसकी क्या होती थी, उसके बास्केट जो थी वो खाली होती थी, राइट. Yes, sir. So why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread for of special made. The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially
made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly, and why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, and why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot teeth could wash up and clean up everything so nicely after all. Okay, so in this paragraph, the narrator is reminiscing his childhood entries और childhood memories. ठीक है, वो क्या कर रहा है कि जब बेकर्स आते थे, जब पैडर आता था, तब क्या होता था, वो जो भी लोब्स लेके आता था, तो जो लोब्स होते थे वो बड़ों के लिए होते थे और जो ब्रेड बैंगल्स होता था वो बच्चों के लिए होता था. तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब भी मतलब सुबह सुबह आता था, तो सुबह सुबह मतलब उसको उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती थी इनको. और फिर ये लोग ये कह रहे हैं कि सुबह सुबह मुंह कौन धोएगा, मुंह धोने के लिए आम का लकड़ी तोड़ना पड़ेगा, फिर उसका मतलब निकालना पड़ेगा, लेकिन इनको वो भी नहीं चाहिए. तो ये लोग कह रहे थे कि टाइगर भी तो मुंह नहीं धोता है ना, टाइगर भी तो ब्रश नहीं करता, तो हम लोग क्यों करें. और फिर ये जो राइटर है, यानी वो क्या कह रहा है कि जब हम चाय पियेंगे तो गर्म चाय की वजह से सारा कुछ सब क्लीन हो जाएगा. ठीक है. हाँ, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट्स ब्रेड नोन एज द बोल. ओके, तो अभी तक हमें ब्रेड लोब्स के बारे में पता था, ब्रेड बैंगल्स के बारे में पता था जो बच्चों के लिए होता है. अब यहाँ पे एक और चीज आ रही है जिसका नाम है बोल. ठीक है, तो ये क्या है, ये है स्वीट ब्रेड. ठीक है, जो मतलब मैरिज में गिफ्ट्स के तौर पे दिया जाता था. Just as a party or the feast loses its charms without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a villager. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of the daughter's engagement. Cakes and bolinas are must for Christmas as well as our other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. Okay. तो इसमें ये कह रहा है कि कोई भी मतलब जो जो मतलब ब्रेड है इसका, ठीक है, और जो फर्नेंसेस है, फर्नेंसेस में इसका होता है भट्टी, है ना, ब्रेड बनाने वाली. तो उसमें ये गांव में रहना बहुत जरूरी है. ठीक है, क्योंकि अगर गांव में नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो क्या हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे. है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैरिज गिफ्ट्स के बारे में बात हो रही है, राइट. मैरिज गिफ्ट्स जो है वो नहीं हो पाएगा. फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे एंगेजमेंट है या कोई भी फीस्ट है, कोई भी पार्टी है, वो नहीं हो पाएगा इसकी वजह से. तो इसीलिए इट इज इसेंशियल, है ना, जरूरी है ये गांव में रहना. ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. ओके, तो पॉइंट आउट करो इस नेक्स्ट टर्म को भी, जिसका नाम क्या है, कबाई. ओके, तो कबाई क्या है, कबाई, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्युलियर ड्रेस नोन एज द कबाई. तो ये क्या है, ये एक तरह का ड्रेस है जो ये बेकर्स पहनते थे, जो ये पैडर्स पहनते थे. ठीक है, it was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than the full-length ones and longer than the half pants. Even today, anyone who wears the half pant which is just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder. Okay, तो इनका इनका जो ड्रेस होता था वो कैसा होता था,
स्पर्शी बताओ, इनका ड्रेस कैसा होता था? पढ़ के कैसा लग रहा है? कैसा ड्रेस होता होगा? लॉन्ग फ्रॉक होता था घुटने हाँ तक का, और वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर। हाँ, और जो मतलब ट्राउजर फुल। होता था वो क्या होता था? मतलब लॉन्ग ट्राउजर भी नहीं होता था, पूरा फुल नहीं होता था, और पूरा हाफ भी नहीं होता था, बीच में। ओके, so the baker यस सर। usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in old days. The baker and his family never starved. है ना? तो जो बेकर था वो क्या था पहले के टाइम पे, मतलब प्रॉफिट वाला बिजनेस था उसमें, मतलब कभी भी लॉस नहीं होता था, राइट? यस सर। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. Their plums physics was an open testimony to this. Even today, any person with jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. ठीक है, और अगर आज भी जो मतलब थोड़े मोटे टाइप होते हैं ना, उनको गोवा में क्या कह देते हैं कि ये ही इज लुकिंग लाइक अ पैडर और बेकर, है ना? यस सर। तो ये क्लियर हो गया, बेकिंग वाला पार्ट। यस सर। नेक्स्ट है हम लोग का कुर्ग, राइट? तो कुर्ग क्या है? कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। ठीक है, तो कुर्ग क्या है? एक जगह है ना, कॉफी के लिए ज्यादा फेमस है, और मतलब बारिश के लिए और मसालों के लिए। तो इसमें देखो, इसमें क्या है? मिड डे बिटवीन Midday between Mysore and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from Kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. Okay, तो अगर हम बात करें कुर्ग की, तो ये लैंड कैसा है? मतलब पहाड़ियों पे है, और यहाँ पे मार्शल मैन मतलब और वाइल्ड क्रिएचर्स भी रहते हैं। कुर्ग, और इसे हम क्या कहते हैं? कडागू, है ना? द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो जो कुर्ग है वो क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, ठीक है, स्मॉलेस्ट जिला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। ठीक है, तो जो कुर्ग है वो क्या है? किसके लिए फेमस है स्पर्शी? कॉफी प्लांटेशन के लिए और स्टार्च के लिए। हाँ, और स्पाइसेस के लिए। इवन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो भी है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। So evergreen rainforest covered 30% of the district. During the monsoon, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here, where, when winter became impractical. These people married amongst the locals, and their culture is apparent in the martial tradition. Marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus, known as kufia. It resembles the kufia worn by the Arabs and the Kurds. तो अगर हम इसकी बात करें कुर्ग की,
ठीक है, तो कुर्ग क्या है, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट किसका, कर्नाटक का, राइट। और ये किसके लिए फेमस है, ये है कॉफी के लिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि मॉनसून में मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है, इस वजह से कई सारे विजिटर आते नहीं है, लेकिन सबसे जो अच्छा टाइम होता है वो कब से कब तक होता है, सितंबर टू मार्च। मार्च। ठीक है, उस समय यहाँ का जो वेदर होता है बिल्कुल परफेक्ट होता है, और इवन हल्की बारिश होती है जो कि परफेक्ट होती है। अब यहाँ पे देखो ये क्या था, ये कॉलोनी थी, किसकी कॉलोनी थी, जब पोर्टुगीज, वो तो गोवा के साइड थे, इधर के साइड अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर, सिकंदर, है ना, अलेक्जेंडर जो आया था उसके मतलब जब वापस जाते समय इधर के टाइम पे ही रुका था। तो यहाँ पे हमें जो मिलेंगे ना, यहाँ पे हमें मिक्स्ड कल्चर मिलेगा, ठीक है, नो, जो कि टोटली हिंदू भी नहीं होंगे और टोटली वेस्टर्न भी नहीं होंगे, ठीक है, तो इसीलिए उनके कल्चर में हमें मिलेगा अलग अलग, जैसे जो कि हिंदू मेन स्ट्रीम से डिफरेंट होगी। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें कुर्गी ड्रेस भी देखो कैसी है, कुर्गी ड्रेस जो पिक्चर में देखो, यस सर। है ना। तो इसे इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कुपिया कहते हैं, कुपिया। ठीक है, इज रिजेंबल्स द कुफिया फ्रॉन बाय अरब्स एंड द कुर्स। और ये किसकी तरह होता है, जो अरब्स में नहीं पहनते, अरब्स में उसकी तरह रिजेंबल करता है, लेकिन होता नहीं, टोटली सेम नहीं होता। तो कुर्गी homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. ठीक है, तो इसका हमारे आर्मी में भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा खासा है। अगर हम बात करें कुर्ग रेजिमेंट का, तो हमारे जो इंडियन आर्मी के सबसे पहले जो चीफ थे, ठीक है, जनरल कैरियप्पा, वो कौन थे, वो भी एक कुर्गी ही थे। ओके, तो इसे अंडरलाइन कर लो, द कुर्ग रेजिमेंट वाला पूरा यहाँ तक was a Kurgi. Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. ठीक है, तो जो कोडेवस हैं वो पूरे इंडिया में यही लोग हैं जिन्हें फायर आर्म्स कैरी करने की इजाजत है बिना लाइसेंस की। ओके, नेक्स्ट देखो, द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of Kurg. ठीक है, तो जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी वो अपनी पानी कहाँ से लेती है, किसी के हिल्स पर से लेती है और फॉरेस्ट पर से। महासीर जो है, महासीर लार्ज फ्रेश वाटर फिश abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs are partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahout. ठीक है, mahout जो एलिफेंट को पालते हैं उन्हें हम कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा का सारा वहाँ की ट्रेडिशन को मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं, ट्रेडिशन को बता रहे हैं कि कैसे वहाँ का जो ट्रेडिशन है वो इम्पोर्टेंट है ना, वो क्या है, अलग है, राइट। यस सर। आगे देखो, द मोस्ट laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting. ठीक है, रिवर राफ्टिंग पता है ना, जो मतलब कम पानी वाले नदियों में होता है और फिर वो बहुत बहाव, मतलब बहुत तेज बहाव होती है नदियों में, और उसमें करते हैं रिवर राफ्टिंग, यस सर। है ना। एंड कैनोपिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन, ये सारा का सारा मतलब बिल्कुल विलेज वाला पार्ट अगर हम बात करें। बाइकिंग, सो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर फेवरेट फॉर ट्रैकर्स, है ना। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी,
monkeys, Malabar squirrels, langurs, slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. तो यहाँ पे ये जहाँ पे जो राइटर है वो किसको पोर्ट्रे कर रहा है? यहाँ पे राइटर जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है तुम्हारा जो जनरल लाइफ है, जो जनरल वाइल्ड लाइफ है उसको, राइट? So the climb to the Brahmagiri hills brings you into the panoramic view of the entire misty landscape. Of course, a walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargadaama. Running into the Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailokupi is a bonus. ठीक है, तो यहाँ पे हमें तिब्बत के भी मतलब कल्चर थोड़ी मिलेगी, ठीक है? हाँ, उसके बाद है तुम्हारा इसमें the monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in the Kurg. यहाँ पे कुर्ग में हम क्या देख रहे हैं? कुर्ग में हम कई सारे ट्रेडिशन को एक साथ देख रहे हैं, कई सारे कल्चर को हम एक साथ देख रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे इंडिया को ये क्या कर रहा है? रिजेंबल कर रहा है, राइट? यस तो ये तुम्हारा सेकंड पार्ट भी इस तरीके से क्या हो गया, डन। बस छोटे छोटे से ये तो खत्म हो जा रही थी। यस चलो कोई नहीं, तो हम ना थर्ड पार्ट ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके खुशी? और बाकी सबसे भी कहो कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, क्लास ज्वाइन करें आप, क्योंकि अब थोड़ा सा दिन रहेगा, ये नवंबर खत्म ही हो गया, दिसंबर, जनवरी एंड फेब, बस 3 महीने और रह गए हैं, उसके बाद तुम लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा फाइनल, यस सर। है ना? और तुम लोग का जो डेट शीट है वो शायद नेक्स्ट वीक तक आ जाए फाइनल का, क्योंकि सीबीएसई इस बार, हाँ इस बार जल्दी ही एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी। अच्छा, हाँ, बोर्ड के एग्जाम्स इस बार जल्दी होंगे, क्योंकि उन्हें अलग भी एग्जाम्स, अलग एग्जाम्स भी वो करना है। ठीक है? यस सर। हाँ, ओके। तुम लोग भी अब अपनी स्टडी का जो प्लान है, अब तो फेस्टिवल सारे खत्म हो गए, उसे बढ़ाओ, उसकी स्पीड बढ़ाओ और तैयारी करते रहो। यस सर। हाँ, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके स्पर्शी? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।